Welcome to online education of standard 12th. Subject Organization of Commerce and Management. Chapter number 8 Financial Management, Session 4. Students, in this today's video, we are going to study about working capital. Okay. Now, you all know the term capital is a plays and very important role, plays and very significant role in the management, because this is the resource where we can purchase the things. Okay, so it is also known as the it is also known as the blood of the business. Okay, let's begin. Meaning and definition. Fixed capital and working capital are required in all types of business. Fixed capital is required to purchase fixed assets such as land, building, machine, etc. while working capital is required to pay day-to-day expenses. अब देखो, जो working capital है, जिसके अंदर दो तरीके के कैपिटल से अपने को पता है, फिक्स्ड कैपिटल भी होता है और वर्किंग कैपिटल भी होता है. क्लियर? तो अब जो फिक्स्ड कैपिटल है वो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए यूज होता है. फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से होंगे? लैंड, बिल्डिंग, मशीन, एक्सेट्रा. ओके, आपने बैलेंस शीट के अंदर देखा होगा, तो बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट साइड में, ओके, आफ्टर गुडविल, जो अपने इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके हेड के, उनके बाद फिक्स्ड एसेट्स अपन रिकॉर्ड करते हैं, जिसके अंदर लैंड, बिल्डिंग, मशीन वगैरह आता है. क्लियर? देन नेक्स्ट उसके हेड के बाद आफ्टर फिक्स्ड एसेट्स वर्किंग एसेट्स आर रिटन, दैट इज करंट एसेट वी कैन से. ठीक है, तो करंट एसेट्स जो है वो क्या कि वो मतलब वर्किंग कैपिटल के तौर पे अपन उनको जनरली यूज करते हैं. वर्किंग कैपिटल जनरली एम्प्लॉयड इन करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस. देखो, जैसे कि मैंने कहा कि करंट एसेट्स के अंदर इनको यूज किया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गए, डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, एटसेट्रा. इट रिमेन्स constantly circulating in the business, therefore working capital is called lifeblood. Okay, जैसे कि working capital को, as I explained earlier, it is also called as the lifeblood of the business. Okay, अब इसको lifeblood क्यों बोला जाता है? क्योंकि working capital का circulation होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये day to day expenses अपन इससे पे करते हैं. Clear? Now let's state the definition. According to the Lincoln, Doris and Stevens, working capital is the excess of the current assets over current liabilities. अब यहाँ पर working capital का मतलब क्या कि अपने current assets ज्यादा है than current liabilities. According to J.S. Mill, the sum of current assets means working capital. और यहाँ पर जो J.S. Mill बोलते हैं, जो sum of मतलब total करेंगे अपन current assets को, तो वो अपना क्या निकलेगा? That will be our working capital. Clear? Now concept of working capital. Gross working capital. Working capital means the sum of total investment in the current assets of the business, such as stock of raw material and finished goods, debtors, bills receivable, short-term securities, etc. अब पहला कॉन्सेप्ट क्या? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है जनरल टर्म्स में? मतलब जो अपन टोटल करेंगे of current assets, that will be what? Our gross working capital. Clear? Now gross working capital equal to total current asset. जैसे कि बताया मैंने कि gross working capital का मतलब क्या? जो current assets है उनको हम जब प्लस करेंगे सबको, तो वो हमारा क्या निकलेगा? टोटल current asset. Now net working capital. Net working capital means current asset minus current liabilities. जो अपना current assets है
उनको हम करंट लायबिलिटी से जब डिडक्ट करेंगे तो अपना क्या नेट वर्किंग कैपिटल निकलेगा. When the current liabilities are less than current asset, it is called positive working capital. अब देखो बच्चों, यहाँ पे the concept which you all have to keep in mind is what? Gross working capital, net working capital and positive working capital. जब current asset ज्यादा हो than current liability, उसे क्या बोलेंगे हम? Positive working capital. और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या होगा? जहां पर करंट लायबिलिटीज अपनी ज्यादा होगी देन करंट एसेट्स. क्लियर? देन डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल. अब डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. अब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स सम ऑफ टोटल ऑफ द करंट एसेट्स सच एज बिल्स रिसीवेबल, डेटर, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक बैलेंस, कैश एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या, जो टोटल अपना एसेट करंट एसेट है उसका प्लस यहाँ पर होगा. और वही नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, करंट एसेट्स में से हम करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट कर देते हैं. नाउ लिक्विडिटी पोजीशन, यहाँ पर ये जो दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी. इसे हम लिक्विडिटी पोजीशन कंसिडर ही नहीं कर सकते. बट यहाँ पर क्या, एक लिक्विडिटी पोजीशन ये बताता है, क्योंकि लायबिलिटीज अपनी कितनी है, करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट अपने पास कितना पड़ा है, तब उससे क्या है कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, एक आइडिया आ जाता है. देन इज व्हाट, फाइनेंशियल पोजीशन एंड मेजरमेंट. नाउ डज नॉट गिव ट्रू आइडिया. यहाँ पर ट्रू आइडिया नहीं, क्यों? क्योंकि सिर्फ एसेट साइड का ही कंसिडरेशन किया जाएगा, ना कि लायबिलिटीज का. बट नेटवर्किंग कैपिटल में क्या, एक फाइनेंशियल पोजीशन, कैश इन हैंड कितना है ये पता चलेगा अपने को. ठीक है. नाउ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इंक्रीजेस द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. जब करंट लायबिलिटीज बढ़ती है तब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा. अब यहाँ पर जो नेट वर्किंग कैपिटल है, ओके, जब लायबिलिटीज बढ़ेगी तब इसका मतलब यहाँ नहीं है कि वर्किंग कैपिटल भी, नेट वर्किंग कैपिटल भी क्या है कि वो बढ़ेगा करके. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज शॉर्ट टर्म कैपिटल. शॉर्ट टर्म कैपिटल किस लिए कंसिडर किया गया इसे, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज. देन इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट. इन वर्किंग कैपिटल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट. अब यहाँ पर करंट एसेट के अंदर कौन कौन इंक्लूड होता है, जैसे कि डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, जिसके अंदर आप लोग बोल सकते शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वगैरह होते हैं. देन कैश, स्टॉक, ये सारे क्या करंट एसेट के अंदर इंक्लूड होते हैं. देन लिक्विडिटी. Liquidity is the basic feature of working capital. All the current asset in the working capital is employed or converted into cash easily. अब जितना भी मतलब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल एज अ अपन यूज करते हैं, ओके, उनको हम क्या इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ लेस रिस्क. Working capital circulates for short term and it is convertible into cash easily, so element of risk is less. यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का अपन उसको इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हियर द चांसेस ऑफ रिस्क इज वेरी लेस बिकॉज इट इज हैविंग द हाई लिक्विडिटी पोजीशन. ओके. नाउ चेंजिंग फॉर्म. द फॉर्म इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन विच वर्किंग कैपिटल इज एम्प्लॉयड. एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फर्दर इनटू फिनिश्ड गुड्स. Finished goods is converted into debtors if it is sold on credit and into cash if it is sold on cash basis. अब यदि हमने क्रेडिट पे सेल किया हुआ है तो डेटर्स अपना इंक्रीज हो जाएगा. यदि हमने कैश में सेल किया हुआ है तो कैश अपना बढ़ जाएगा. पर ओके, तो इस तरीके से क्या है कि ये फॉर्म चेंज होते हैं. ओके. देन टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस. जैसे कि राइट फ्रॉम द डेफिनेशन वी आर लर्निंग दैट वर्किंग कैपिटल is used to pay day-to-day expenses. Okay. Then no depreciation. Depreciation सिर्फ लगता है तो किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पे, ना कि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स पे. Depreciation is not calculated due to circulating capital in the business and its form is constantly changing. अब depreciation नहीं लगने का मेन रीजन यहाँ पर ये भी है कि जो ये कैपिटल है बार बार चेंज होते रहेगा और जो उसका फॉर्म है कभी डेटर में चेंज हो जाएगा, कभी कैश में चेंज हो जाएगा, कभी स्टॉक में चेंज हो जाएगा. मतलब इट इज कंटिन्यूअसली, इट goes on changing, so no depreciation is added.
Okay, requirement according to the type and form of business. Requirement of working capital is dependent upon the form and the type of business. Thus, its ratio is different in each business. अब यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल है वो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा बिजनेस के, वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर उस तरीके से भी क्या है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो अपना लगेगा. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करेंगे. नाउ फर्स्ट थिंग इज टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, कि भाई किस नेचर का वो बिजनेस है, मतलब वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या है उस हिसाब से. ओके, द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस. एग्जाम्पल, द ट्रेडिंग यूनिट मेंटेनिंग large stock of goods and selling the goods on credit require more working capital. ट्रेडिंग यूनिट है, अब वो बहुत ज्यादा स्टॉक रख रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट पे गुड सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कि वर्किंग कैपिटल जो है वो उनको ज्यादा लगेगा. क्लियर, कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. द रेशियो ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस एज पर द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री. जैसा नेचर है इंडस्ट्री का उस अकॉर्डिंग, जैसे गैस कंपनी हो गई, इलेक्ट्रिक कंपनीज वगैरह हो गई, यहाँ पर जो कैपिटल है वो कम लगेगा, बट जो लेबर इंसेंटिव्स है वो ज्यादा लगेगा. मतलब लेबर इंसेंटिव्स इंडस्ट्रीज वगैरह होगी, वहां पर वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा लगेगा. देन साइज ऑफ बिजनेस, द स्मॉलर द साइज ऑफ द बिजनेस द लेसर द वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, एंड द ग्रेटर द साइज and the width of the business the greater is requirement of working capital. यदि बिजनेस यूनिट अपना छोटा रहेगा वहां पर वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, और यदि अपन ने एक्सपांड किया हुआ है तब वहां पर क्या है कि अपने पास अपना वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा लगेगा. क्लियर, देखो. देन प्रोडक्शन साइकिल. Now production cycle means the time period between the procurement of the raw material and manufacturing of the finished goods. As production cycle get longer between the raw material and semi-finished goods, the need of working capital is more. अब जो प्रोडक्शन साइकिल है यहाँ पर जो रॉ मटेरियल का टाइम पीरियड है और जो मैन्युफैक्चरिंग का टाइम पीरियड है, यदि इनके बीच में डिफरेंस रहता है तो अपने के लिए क्या है कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल सीजनल गुड्स, ओके, तो वहां पर क्या कि वर्किंग कैपिटल, क्योंकि अपने को वहां पर स्टॉक को पाइल करके रखना पड़ेगा, तब जाके इट मींस पूरे साल तक अपना जो प्रोडक्शन है वो चलेगा. क्लियर. देन एग्जांपल देखते हैं. कॉटन इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री रिक्वायर लार्ज वर्किंग कैपिटल एज द प्रोडक्शन साइकिल पीरियड इज लॉन्ग, while bakery and dairy industry require comparatively less working capital because the duration of the manufacturing process is short. अब कॉटन से एक क्लॉथ बनने में बहुत टाइम लगेगा, और जो डेयरी प्रोडक्ट है वो ऑन द स्पॉट बन सकते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या कि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल डिफर करता है. क्लियर. अब देखो प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड. Larger working capital is required if the demand of the produced good is seasonal and business unit flows the steady production policy throughout the year. Example, company manufacturing woolen cloth continues the production mostly for the 12 months but the sale remains in winter season. अब woolen के cloth सिर्फ और सिर्फ winter season में लगेंगे, but फिर भी जो production है वो चलता रहेगा पूरे साल तक. Stockpile of the raw material. This is for mostly seasonal goods. Quantity of stockpile of the raw material becomes a must. Its sources are limited for the supplying irregular or available in the certain seasons only. जो raw material वगैरह है particular season में ही मिलता है तब, या तो फिर बाद में क्या है कि जो टाइम ड्यूरेशन है, मतलब जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वगैरह वहां तक उतनी इजीली नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे सारे सर्कमस्टेंसेस में क्या है जो स्टॉक पाइल करके रखना पड़ता है. Then in that process the working capital is required very high. Clear. Then credit policy. The need of working capital is less if the policy of the sales of the finished goods in cash basis. कैश बेसिस पे है तो क्रेडिट मतलब वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. यदि क्रेडिट बेसिस पर है, जो टाइम ड्यूरेशन वहां पर पेमेंट देने के लिए दे रहे हैं, तो वहां पर क्या है कि हमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा. Conversion of current asset into cash. Less working capital is required in case of prompt collection from the debtors.
डेटर से यदि जो उधार है वो पूरा तुरंत जल्दी मिल रहा है तो sales of finished goods on cash, collection of bills receivable on date of the maturity. If conversion, it in converse condition large working capital is required. अब जब मतलब डेटर्स भी मेच्योरिटी टाइम पीरियड पे अपना दे रहे हैं तो वहां पर वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, नहीं तो फिर ऐसा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज हायर. यदि स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्यादा हुआ मतलब गुड्स ज्यादा सेल हो रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा और स्टोर करके रखना हुआ है तो ज्यादा लगेगा. क्लियर. अब देखो देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी. द मैनेजरियल ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मींस गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद द मिनिमम एफर्ट. द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल कैन बी रिड्यूस्ड बाय एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज and reducing or removing the wastage by the prompt collection. तो अब देखो यदि मैनेजरियल एफिशिएंसी मैक्सिमम एफर्ट्स मतलब सॉरी मैक्सिमम रिजल्ट लेके आ रहे विद द मिनिमम एफर्ट्स, वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. और यदि मैक्सिमम रिजल्ट मिनिमम रिजल्ट आ रहा है विद द मैक्सिमम एफर्ट तो वहां पर वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. The distribution of profit as a dividend affects the cash because a dividend is paid in cash. If company allots a major part of its profit as a dividend, more working capital will be required due to the large outflow of cash. Okay, तब जो dividend है वो यदि ज़्यादा पे कर रहे हैं कैश के अंदर तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. यदि सीधे राइट प्रपोर्शन में यदि वो दे रहे हैं तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल कम लगेगा. इट मीन्स रिटेनिंग प्रॉफिट ऑल्सो it affects the working capital. Hope you all have understood the session. Thank you. Have a great time.